Hello बच्चों, good morning to all of you, my dear students. I hope you are all fine at your home. Students, today we are going to start chapter number 3 of class 11th, subject sociology. Chapter number 3 related to the environment and society. Students, we have already discussed in previous lecture about this chapter and concept of the environment and society. We will already discuss what is environment and society. It's a different term and it has a different meaning, but both terms are interrelated with each other. Understood? Environment and society. Without our environment, society cannot maintain properly, but society has responsibility to purify, to protect our environment. If the environment is dirty, our life will be disturbed. If our environment is safely purified, protective, we will live safely. ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं. We can say in simple language, environment and society are two sides of one coin. Imagine a coin in your mind. One coin has two sides. One side is tail and one side is head. Similarly, environment and society are two sides of one coin. If we remove one side of the environment or society, we will not fully examine, we cannot fully observe of the whole ecology system. हम इन दोनों के बारे में ही अगर हमने अच्छे पढ़ना है, इसको अच्छे से देखना है, समझना है, तो हमें दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा. इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी क्या क्या है और इनके दोनों के बेसिस क्या हैं. वी हैव डिस्कस द मीनिंग. इसका मीनिंग क्या है? द इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी स्पेशलाइजेशन विद द जियोग्राफी मेजर प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द reciprocal relationship between social and environment process. Reciprocal relationship means कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. जो हमारा सोशोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. Environment geographers are concerned with the how human beings use the earth and how human impact the environment in which they live. जो हमारे जियोग्राफर है ना, उन्होंने एग्जांपल दी थी, इसकी डेफिनेशन दी थी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, और जो हमारा इम्पैक्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द इन्वायरमेंट. ये इन दोनों की केस स्टडी है. इट्स नोन एज ए इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी. Next, a relationship. Relationship is we can study relationship about three aspects: economic relationship, cultural, and psychosocial environment. Economic environment give us so many types of productions which are needed for the human beings. Living of full standards of life, production needs, कंप्लीट फुलफिल एंड बेसिक नीड्स, ये सारे हमारे इकोनॉमिक गेन्स होते हैं. इकोनॉमिक गेन्स जो हमारे लिए ऑक्यूपाइड करते हैं हमारे ऑक्यूपेशन को, ये हमारे इकोनॉमिक कल्चरल होते हैं कि हम अपने कल्चर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि जिसके साथ हमारी इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. और साइको सोशल इन्वायरमेंट, हम सोचते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे और इसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी और एक्सिस्टेंस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं. ये जो थे हमारे रिलेशनशिप डिफरेंस और इन्वायरमेंट की. फिर रिलेशनशिप इट्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंस, कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं. इंटरलेटेड कैसे? कि जेनेटिक्स और बायोलॉजी. नेचर साइड अल्टरनेटिव आर्ग्यूज दैट आवर पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी बिहेव. हम क्या हैं और कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ये तो हमारे इन्वायरमेंट और सोसाइटी के अंदर क्या था, रिलेशनशिप होता है. वॉट टुडे विच कंसेप्ट विल डिस्कस है, हम जो आज इसके बारे में मेजर डिस्कस करेंगे वो इसके कंसेप्ट डिफरेंट है फ्रॉम टुमारो कंसेप्ट. जस्ट ओनली टुडे विल डिस्कस द goals of and achievement of the
sustainable of the development, your environment. Okay, let us start with the sustainable development lightly study. After the study of sustainable development, we will study the goal and achievement of the sustainable development. Firstly, I will clear the meaning which we have discussed in early lectures. Sustainable development. Sustainable development is that type of development which complete our needs without compromising of futures generations. कि आज के टाइम के अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं हम उसको ऐसे यूज़ करें कि जो वो आने वाले हमारे टाइम के अंदर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के अंदर हैं उनको भी कोई उनका इफेक्ट ना हो. दैट इज़ नोन एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से sustainable development is that development which satisfies the needs without compromising of the future generations. आज के टाइम के अंदर हमारी जो ऐसी रिसोर्सेस हैं उनको हम ऐसे फुलफिल करें, उससे हम ऐसे उनको यूज़ करें कि वो हमारी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ हमारी जो आने वाली जनरेशन है फ्यूचर के अंदर उनकी नीड्स को भी फुलफिल करे. तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, 3 पिलर्स हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सोशल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक. दैट पिलर आर इंटरलेटेड विद ईच अदर. इफ विच एनी वन पिलर रिमूव फ्रॉम दिस साइड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी डिस्टर्ब्ड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कि इनमें से अगर हमारा एक भी कोई पिलर डिस्टर्ब हो जाए या रिमूव हो जाए तो हमारी पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके, दे आर इंटरलेटेड एंड मेक ए सस्टेनेबिलिटी प्रॉपरली. तो ये जो है हमारी सस्टेनेबिलिटी को प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, उनको बना के रखते हैं. ये जो हमारे पिलर हैं इन द सोसाइटी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे 3 पिलर्स जो है सोशल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक. सोशल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. Now let us to the major point today we will discuss. Now there are 3 primary goals of sustainable development. जो हमारी sustainable development है उसके मेजर गोल जो हैं वो 3 हैं. फर्स्टली, reductions of poverty across the world. These solutions primarily focus on the least development and low income countries where poverty is rife. कि हमारी जो पॉवर्टी है वो क्या है, डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है among the world, not in one special country, among the world. The aim to eradicate poverty across the board by expanding social protection programs like school feeding, cash transfer, targeted food assistance, social insurance and labor market programs such as skill training, old age pensions, wage subsidies, unemployment insurance, disability pensions and so on. कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे मेजर जो गोल है वो ये है कि इरेक्शन किया जाए किसको, पॉवर्टी को, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, रोकना है, ज़्यादा पैदा नहीं होने देना, जो हो चुकी है उसको रिमूव करना है. और नेक्स्ट हमने पॉवर्टी को एलिवेशन नहीं करना, नहीं उसको मतलब फुलफिल नहीं करना. अगर हमारे कंट्री के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर या अमंग द पीपल्स पॉवर्टी विल इंक्रीज डे बाय डे, इट इज़ मेजर प्रॉब्लम टू दी डेवलपमेंट. तो हम क्या करेंगे, हम पॉवर्टी को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास सोर्सेस हैं उनको आज के अंदर ही यूज़ करना शुरू कर देंगे. तो वो सारे सोर्सेस ऐसे यूज़ हो जाएंगे कि इन फ्यूचर के अंदर उनकी कोई डिमांड तो है बट उनकी सप्लाई नहीं रहेगी. तो उसको मेंटेन करने के लिए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो है हमारी पॉवर्टी की. पॉवर्टी जब पैदा होती है, पुअर पीपल डिमांड रिसोर्सेस, तो वो रिसोर्सेस की डिमांड करते हैं विच आर नॉट फुलफिल ऑन द टाइम, कि जो उनके पास टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं होते. तो उनकी इस पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है बहुत से एफर्ट्स करते हैं. वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेटअप लार्ज इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, क्रिएट न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू टेक्निक विच आर फुलफिल टुडे नीड्स एंड आल्सो रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. तो हम इसको क्या करते हैं, आज के टाइम के अंदर भी मेंटेन करते हैं और फ्यूचर की जनरेशन के अंदर भी इनको मेंटेन करते हैं, ताकि
वो है जो हमारी आने वाली जनरेशन, उनके ऊपर भी इसका कोई बर्डन ना हो। तो उनके लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ओल्ड एज पेंशन देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन होती हैं, प्रोटेक्शन प्रोग्राम होते हैं, स्कूल के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उन बच्चों को कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए वो एफर्ट्स कर सकें। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल हाउ टू मेंटेन अवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमें ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए भी और करनी होती है कि हमारी जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रह सके। दिस संस्था डेवलपमेंट गोल्स इज टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ईच स्टेज ऑफ लाइफ। इफ इट इज ए प्रभाव, ए गुड माइंड हैज़ ए गुड साउंड हैज़ ए गुड माइंड। जो ये प्रभाव के अच्छे दिमाग के अंदर ही अच्छे आइडियाज़ होते हैं। अगर हमारा कोई इंसान हमारी सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी है, पॉवर्टी के साथ लोगों के अंदर क्या है, इलनेस है, डिसीज़ है, तो वो हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे नेशन के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो अपनी डिसीज़ के अंदर ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है। उसको अगर वो हेल्थी होगा तो वो क्या करेगा, हमारी सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचेगा, हमारे सस्टेन डेवलपमेंट के लिए वो सोर्सेज क्रिएट करेगा, ताकि लोगों के अंदर उसका क्या हो, एक अच्छा रिस्पॉन्स हो, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नीड्स हैं वो भी प्रिजर्व हो सकें। तो हर हालत के ऊपर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों को हेल्थी रखने के लिए अवेयरनेस देनी जरूरी होती है। द गोल्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द मेन हेल्थ प्रोडक्ट्स सच एज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। गवर्नमेंट भी एफर्ट्स करती है कि बच्चों को और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको शुरू से ही हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो भी हेल्थी रहें और उनकी मैटरनिटी भी हेल्थफुल रहे। Maternal and child health, reproductive health, environmental, communicable and non-communicable disease, universal health coverage and access to quality, safe, effective and अफोर्डेबल वैकेंसी एंड मेडिसिन। तो उनके लिए हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो लोग क्या है अपने आप को हेल्थी फील करें और नेशन के अंदर अपना प्रॉपर जो है कोऑपरेट दें, ताकि नेशन के अंदर हर एक के लिए डेवलपमेंट के सोर्सेस प्रॉपर यूज़ हो सकें और अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो डेवलपमेंट है वो भी मेंटेन रह सके। प्रोविजंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। विदाउट एजुकेशन पीपल कैन नॉट थिंक अबाउट द नेशंस। के एजुकेशन के बिना लोग अपने नेशन के बारे में नहीं सोच सकते। दे हैव नो ब्रॉड माइंड, उनके पास अच्छे माइंड में नहीं होते कि वो अपनी आज की हेल्थ, अपने आज की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाले समय की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर सके। तो उनके लिए मेजर प्रॉब्लम होती है। जो हमारी संस्था डेवलपमेंट है ये प्रोवाइड करवाती है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेटेड पीपल कैन थिंक अबाउट द नेशंस हाउ टू यूज प्रॉपरली सोर्सेस विच आर एक्सपेंसिव। हम उन सोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत कीमती हैं, हम भी यूज़ करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी उनको सेफ रखें। तो ये जो फैसिलिटी होती है एजुकेशन की, अगर हर एक के पास होगी तो हम एक दूसरे के साथ अपने बिहेव को, अपनी कम्युनिटी को, सोसाइटी के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। प्रोविजंस ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। टुडे इज मॉडर्न सोसाइटी, urbanization increase day by day, but why? Because people are catch up with the new job opportunity in the cities। जो शहरों के अंदर लोगों को जॉब की फैसिलिटी मिलती हैं तो वो लोग धीरे धीरे शहरों के अंदर आते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। इंडस्ट्री क्या करती है, वो इतने टाइप्स के अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है विच आर रिलीज पोल्यूटेड वाटर इन द रिवर्स, पोल्यूटेड स्मोक इन द एयर्स। तो उससे हमें क्या होता है, इफेक्टेड होते हैं हम लोग। जब इफेक्टेड होते हैं तो हमें डिसीज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी नेशनल बिल्डिंग के अंदर ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। एक जो बीमार आदमी होता है वो अपने नेशन के लिए सोचता नहीं जितना अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है। तो हेल्थ के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एसेंशियल ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स कैसे, हमें अपनी सोसाइटी के अंदर वो सोर्सेस यूज़ करने चाहिए विच आर रीन्यूएबल। वो नहीं हो कि एक बार यूज़ करने के बाद हम उनको दोबारा यूज़ ना कर सके। ये गवर्नमेंट का मोटो भी है कि हम लोग वो सोर्सेस को प्रोड्यूस करें विच आर रीन्यूएबल, जो हमें आज भी रीन्यूएबल हो और आने वाले समय के अंदर भी हम उनको दोबारा यूज़ कर सके।
एक तो ये हमारा इसके अंदर। दूसरा एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट। एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आज के टाइम के अंदर जो फार्मर होते हैं वो ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं विच मेक के क्रॉप्स मोर फर्टिलाइज़र, जो ज़्यादा उनको फर्टिलाइजर होती है, बट दे आर नॉट थिंक अबाउट द ह्यूमन डिसीजेज। वो लोगों की बीमारियों के बारे में नहीं सोचते कि उनको कौन कौन सी बीमारियाँ लगेंगी। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोइंग पॉपुलेशन, उनके लिए हम ऐसी जो प्रोडक्शंस के लिए जो उनके फर्टिलाइजर्स हैं नेसेसरी वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो फ्यूचर के अंदर भी यूज़ हो सकें और हमारे लिए भी यूज़ होने के साथ साथ हमारे लिए जो वो कोई डिसीज़ वो इलनेस ना क्रिएट करें। मैनेज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैन बी मिटिगेटेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेट practices seek to reduce the use of fossil-based resources of fuel like oil, natural gas and social. फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो हम आज के टाइम के अंदर यूज़ करते हैं बट नेक्स्ट में हम नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें ऐसे सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि हम आज भी उनको यूज़ कर सकें और नेक्स्ट में फ्यूचर के अंदर भी यूज़ कर सकें। हमें ऐसे फ्यूल को कम यूज़ करना चाहिए जो क्या करे, हमारे ग्रीन हाउस को हार्मफुल इफेक्ट दे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Sustainable development practices have the ability to create more financially sustainable economics across the globe. जो डेवलपमेंट है वो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे जो आज के लोगों के साथ साथ उनकी इनकम सोर्स को पूरा करे और आने वाली फ्यूचर के अंदर भी उनकी नीड्स को पूरा करें। डेवलपिंग कंट्री दैट कैन नॉट एक्सेस फॉसिल फ्यूल कैन लीवरेज रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू पावर देयर इकोनॉमिक्स। जिनके पास जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं वो परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल जो सोर्सेस को बना सकते हैं और अपनी यूज के साथ साथ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। फ्रॉम द दिस कंट्री कैन क्रिएट सस्टेनेबल जॉब्स एज अपोज टू डिफाइन जॉब्स बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजीज। वो ऐसी जॉब को क्रिएट करे जो फॉसिल फ्यूल की जॉब के साथ ही इंटरलेट हो, ताकि उनकी जो सोर्सेस है उनके भी कम यूज हो सके और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड हो सकें। ओके, ये तो थे बेटा हमारे सोर्सेस कि कौन से मेजर हैं और कौन से नहीं है। अगर हम इन सोर्सेस को प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट देंगे एज वेल इन्वायरमेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। आई होप माय डियर फ्रेंड्स you will clear all concept related to this chapter. Next we will discuss a new chapter with the new concept. Remember my dear students, sustainable development is that development which are fulfill our today needs and reserve for the future generations. So उनको हम सेव रख सकते हैं। ओके, हमें आज के टाइम के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोटो को ही अपनाना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अगेन विद न्यू कंसेप्ट। Thanks a lot.